શ્રેયા, તને કોઈ મોટા કહે ને તો કરવાનું. You cannot argue. Okay? You need to learn that. Respect. You understand? You cannot show disrespect. Okay, Monica? હા, જય સચ્ચિદાનંદ. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનો અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા ભજનની રડ મને લાગી. દાદા ભજનની રડ મને લાગી. ભક્તિ રસમાં નાવું છે. ભક્તિ રસમાં નાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવન મારું બન્યું અકારો. જીવન મારું બન્યું અકારું. દાદા ચરણોમાં રહેવું છે. દાદા ચરણોમાં રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે.
ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રજની દાદા અનમ્યુટ કરો. અનમ્યુટ રજની દાદા. રજની દાદા અનમ્યુટ કરો. ના અવાજ નથી આવતો રજનીદાન. Oh, thank you. Okay, okay. I don't know how. Who muted me? Okay. Anyway, श्रेया दादा शुद्धात्मा पद प्रार्थना आती है आपको? श्रेया, હા, आप बोलिए प्लीज. શુદ્ધાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના. यस. હે અંતર્યામી પરમાત્મા, આપ દરિયોજી માથામાં બિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અવેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતાએ કરીને મેં જે દોષો કર્યા છે તે સર્વે દોષોની આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું. તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો અને તેવા દોષો ન કરે એવી આપને ભક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. હું અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તન્મે આકાર રહીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. ओके, हम 9 कलमों बोलेंगे. मोनिका दीदी, नंबर 1. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધ્યેયધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના ડૂબે, ના પ્રત્યે ના અનુમોદાય એસી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધ્યેયધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના ડૂબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન, સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. तो आप गुजराती में बोलते हैं? वेरी गुड. श्रेया, नंबर 2. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબાય, ન દુબાવાય કે દુબાવવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબાય એવું સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. नंबर 3, खुशी. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, મને हेल्प करो श्रेया. somebody help. Number 3. મને કોઈ પણ દેધારી ઉપદેશક, સાધુ હે સાધ્વી, દાદા ચાર્યનો અવળવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Okay, number 4, Tirth. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ, તિરસ્કાર ક્યારે પણ ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Jia. Number હા. 5. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યેનો અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની શક્તિઓ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Satchidanand. Itakshi Ba. Number 6. Navnidhi, number 6.
हे दादा भगवान पढ़े कोई पर देहधारी जीवात्मा हे दादा भगवान पढ़े कोई पर देहधारी जीवात्मा प्रत्यय स्त्री पुरुष अगर नपुंसक कब्बे तिलिकधारी होए तो तेड़ा संपत्ति के चित पात्र पौड़ विषय विकार संपत्ति 200 इच्छाओं चेष्टाओं की विचार संपत्ति 200 न करावाय के कर्ता प्रत्यय न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो पढ़े निरंतर निर्विकार रहवाड़ी परम शक्ति आपो. Number 7, Itaxi. Oh, number 8. No, sorry, 7. Itaxi, unmute. हाँ बोलो. દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ રસમાં લોભથપણું ન કરાય, સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. अव्यय. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવનાનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કિંચી માત્ર પણ અનવાદ અપરાધ અવિનય ન કરાય ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Very good. Divya, number 9 column. હે દાદા મારે ચોક્કસ કરવાનો નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો. Very good, Divya. सबको पसंद पड़ा दिव्या का? हाँ. वेरी गुड दिव्या. ओके, देखो अभी कोई आप तो पुत्र नहीं आए तो देखो क्या करेंगे हम अभी. ओके, खुशी अहमदाबाद. पहली कलम आप किधर ब्रेक करते हैं आप? हाँ, जय सच्चिदानंद. मेरी पहली कलम आज तो ब्रेक नहीं हुई थी. नहीं, और क्वेश्चन सुनो. आप किधर ब्रेक हो करते हैं? मम्मी के साथ कोई बार झगड़ा हो जाता है उसमें, और दीदी के साथ हो जाता है झगड़ा. और कोई बार मेरी ट्यूशन में भूल होती है तो मैम डांटती है कि क्यों ऐसा किया, तो मेरा मुंह बिगड़ जाता है. ओके, वेरी गुड. नंबर 3 श्रेया, नंबर 3 आप किधर ब्रेक करते हैं? श्रेया, आप सोचो तो. नंबर 4 मोनिका. मोनिका, नंबर 4 आप किधर ब्रेक करते हैं? हाँ, मेरा फ्रेंड्स के साथ बहुत बार ब्रेक होता है और पापा और मम्मी के साथ होता है. वाह, किस पे बहुत ज्यादा आता है? और तिरस्कार पापा के साथ ज्यादा आता है और मम्मी के साथ भी ज्यादा है. ओके, तिरस्कार कभी नहीं होना मांगता है. श्रेया दीदी, आपको मालूम पड़ गया नंबर 3? बोलो. नंबर 3 मुझको टीचर के साथ ब्रेक हो जाता है जब टीचर मुझको हिंदी में डांटते हैं. ओके, और दूसरा? और जब मैथ्स में मेरे सम रॉन्ग पढ़ते हैं तो मेरे सर मुझको डांटते हैं. तो तीसरा? क्या? तीसरा आपका टीचर्स कौन है? सब स्कूल के टीचर्स ही है. और फिर मैं एक दिन होमवर्क करके नहीं आई थी स्कूल में, तो फिर मेरे गुजराती के सर मुझको डांटे थे. ओके, किसको मालूम है मोर टीचर्स किधर है आपका? अव्यय. हमारे मोर टीचर्स मम्मी एंड पापा है. ओके, पापा मामा. तो दूसरा किसको मालूम है टीचर्स? खुशी.
आप्तपुत्र, आपका पुत्र। मोनिका, मम्मी पापा और दादा मम्मी भगवान। पापा हो गया, डोंट रिपीट। हाँ, दादा आपका भगवान। पुत्र आ गया, टीचर्स आ गया। क्या? हम जो भी सिखाते हैं वो हमारे गुरु ही है, हाँ बोलो बोलो। सभी एल्डर्स ओके, वेरी गुड। और बगल वाला आपका टीचर नहीं है? है। हाँ, तो वो क्यों भूल जाते हैं? और दूसरा? पानी आपका टीचर है? खुशी, क्यों हंसते हैं आप? पानी आपका टीचर है? नहीं मालूम है। मोनिका, पानी आपका टीचर है? नहीं मालूम। इसको मालूम है। अक्षय काका, हाँ पानी आपका टीचर है? हाँ, पानी सिखाता है क्या है हमें जीवन क्या में वे पानी सिखाता है हमें क्या जीवन सिखाता में। है? पानी, नदी का पानी जैसे जीवन में बहता रहता है वैसे हमको बहते रहना है, वो सिखाता है। और ओके, पानी पानी सबको, सबकी प्यास बुझाता है। कोई उसको ग्लास में लेगा, कोई हाथ से पीगा, कोई गंदा करेगा तो भी प्यास बुझ जाता है। वैसे हम भी सभी को सुख दे सकते हैं, ऐसा सिखाता है। ओके। दादा ने पानी के बारे में क्या बोला मालूम है आपको, अक्षय काका? नहीं मालूम, नहीं मालूम। ओके, तो सुनो बच्चे लोग, दादा ने क्या बोले हैं। वाटर इज अ रेयर कमोडिटी। किसको मालूम है क्या बोला मैंने? वाटर बहुत 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 अमूल्य चीज है। जास्ती कदर भी बगाड़ने का नहीं है। दादा भगवान एक बाल्टी से सारी जिंदगी शावर लिया, तो आप कितने बाल्टी से शावर लेते हैं आप? है? आपको ग्लास में कोई पानी देता है, बाद में नहीं पीता है तो क्या करते हैं मोनिका? रनी दादा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसको नहीं आ रही है? इसमें अक्षय स्लो काका आ आता रही है। है आवाज? हाँ, आवाज आता है। हाँ, गीताक्षी भाई, आपको हमेशा प्रॉब्लम रहता है कुछ कनेक्शन का। ओके, हाँ। आप पानी थोड़ा बचते ग्लास में क्या करते हैं आप मोनिका? हाँ, तो ये बहुत गुना, दादा भगवान बोलते हैं बहुत बहुत गुना है। ओके, मालूम पड़ा? दूसरा कौन सा अपना टीचर है अभी? पानी आ गया। सब जो चीज करते हैं आपका आएगा, छोटा बड़ा सब। मोनिका, खुशी, करिश्मा, सब टीचर है। पानी, दूसरा क्या होता है? टीचर है कि चीटर है? कौन आया अभी, किधर से आया? कहाँ से आए? हम तो थे ही, गए ही नहीं तो। अरे अब तक घूम किधर हो गए थे आप? अरे जरा। Okay, anyway, so we were thinking about कि कौन टीचर है अपना, तो ये सब बहुत बच्चे लोगों ने बोला, बाद में हमने पानी बोला, और बाद में पूछा दूसरा क्या है, दूसरा क्या क्या टीच कर सकते हैं हम हमको। बच्चे लोग, एवरीथिंग आप देखते हैं, उठते हैं, चलते हैं, वो सब टीचर है। मोनिका, आपके पास 50 ड्रेस है तो सबसे बड़े ड्रेस टीचर कौन? सबसे बड़े टीचर कौन?
वो बाद में आएगा। दीपक दा आप पूछिए। ये मोनिका आपके पास 50 ड्रेस है? ओ नहीं, मोनिका नहीं, खुशी 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 अहमदाबाद, आपके पास 50 ड्रेस है तो क्या टीच करती है आपको? श्रेया, मोनिका, 50 ड्रेस है तो तब मुझे सीखना तो कुछ नहीं मिलता, बट वो लालच बढ़ जाती है अंदर। हाँ, लालच 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 और मोह। वो 50 के खुशी आपके पास तो 50 होगा ही, तो 50 में तो एवरीडे कितना पहनते हैं आप? 50 नहीं है, हाँ, 50 नहीं है। कितना बैट मारने का है? कितना बैट मारने का हमको? आज तो दीपक दादा आपके घर पे हम काउंट करेंगे। दीपक दादा, क्या बताया? आई बेट यू के 50 के जाती है आपको। ड्रेस की बात, कौन किसका आवाज आता है? दीपक दादा, आपका आवाज आता है? किसका आवाज आता है? मुझे आवाज नहीं आया, कट हुआ आपका। योर वॉइस इज Okay. ब्रेकिंग। और खुशी को हम चैलेंज दिया कि उसके पास 50 से मोर क्लोथिंग्स है, तो बोल वो ना बोलती है, तो मैंने बोला दीपक दादा आप आपके घर है तो काउंट करेंगे। आई सी। ओके। नहीं, ये सब सोचने की बात है बच्चे बच्चे ना। ओके दीपक दादा, आपका क्वेश्चन क्या था? हाँ, सबसे बड़े टीचर कौन है? माता। जी हाँ, क्या बोलती है? मम्मी पापा। मम्मी पापा। तीर्थ, राइट राइट। अजय, सबसे बड़े टीचर दादा भगवान। ओके, वेरी गुड। वो भी अच्छा करेक्ट है दीपक दादा। नो नो, तो है उसको ना नहीं बोल सकते, लेकिन जीवन में हमको दादा का टीचिंग तो है ही, लेकिन हमें टीचिंग कौन ज्यादा देता है? आई ओपनर बोलते हैं ना, उसे आई ओपनर। हु इज द आई ओपनर? चलो जल्दी। गुरुजी। अभी आपको साउंड नहीं आता अभी? तो बोलूं मैं? हमारी नवनिधि, फैमिली नवनिधि दीदी वो क्या बोला? हमारी क्या बताया फैमिली नमस्ते? हाँ, हमारे पेरेंट्स मम्मी मासी दादी आवाज कट होती है, पता नहीं चला। सचिन दादा सुना आप? हमारी नहीं, बोलिए। बोलिए नवनिधि दीदी। हमारी फैमिली हमारी सबसे बड़ी टीचर है। हमारी मदर मासी। सुनाई दिया दीपक दादा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, किसी वो ने सुना? खा जाते लोग। हाँ, डैडी मम्मी को भी खा जाते, पी जाते, इसी पानी के जैसे, शरबत के जैसे नहीं पीते हैं। बोलो अभी आई। हमारी बॉडी नो, कोई जवाब गलत नहीं है, जवाब कोई भी गलत नहीं है, लेकिन जो आई ओपनर बोलते हैं ना, आई ओपनर आंख खुला कर देता है। क्या हुआ? हमारे अंदर के दादा। नहीं, चलो दो जवाब है। एमसीक्यू से आप एमसीक्यू से नंबर 1 सफलता, सफलता, सक्सेस, एंड नंबर 2 फेलियर को हिंदी में क्या बोलते हैं?
निष्फलता और निष्फलता, पहला ए सफलता है, बी निष्फलता है, ए सक्सेस है, बी फेलियर है। कौन हमारी आंखें कौन खुलता है? निष्फलता। कौन बोला? कौन बोला? जिया। सही बात है। जिन्होंने जीवन में निष्फलता देखी है ना, और वहां आंख खुल गई, वो आंख कभी भी बंद नहीं होती है, कभी भी बंद नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने निष्फलता अच्छे से चख ली कि उसमें कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है। फिर वो घोड़ा कभी रुकता ही नहीं है, वो अपने ध्येय को पहुंच कर ही रुकता है। में निष्फलता को आमंत्रण नहीं देना है, इनवाइट नहीं करना है, लेकिन जो जो टॉप ऊपर गए हैं ना, वो कहीं ना कहीं निष्फल हुए हैं लाइफ में, और वो निष्फलता ने उनकी जो आंखें खोली है ना, वो कभी बंद नहीं होती है। वो जीवन में आगे ही बढ़ते जाते, आगे ही बढ़ते जाते। समझ में आया? हाँ। ये बात है। आगे कुछ प्लीज। तो दीपक दादा, वो सक्सेस और फेलियर का वो मेजर क्या है, किसको मालूम है? मोनिका, व्हाट इज सक्सेस एंड व्हाट इज फेलियर? सक्सेस हम विन करते हैं जिसमें भी, और फेलियर जिसमें हम जो कर नहीं पाते वो चाहते हैं। हमको नहीं सुनाई देता है। Then don't murmur. जोर से बोलो। Clear and loud. हाँ, सक्सेस में सक्सेस में जीतना होता है, और फेलियर में हमें हार के जीते हैं वो। खुशी अहमदाबाद, व्हाट इज सक्सेस, व्हाट इज फेलियर? बोलो। नहीं मालूम है तो बताओ लो, हमको मालूम नहीं है। नहीं मालूम है दीदी। हाँ, ऐसे बोलो। नहीं दीदी। सक्सेस वो होता है जब आप सपाटे भाव से रहते हैं, और फेलियर वो होता है जब हमारे अहंकार वगैरह सब बढ़ जाते हैं, जब आप उससे वापस होते हैं और वापस सपाटे भाव से होते हैं। अव्यय। फेलियर वो होते हैं जो कोशिश करते हैं, कभी हार नहीं मानते। ओके दीपक दादा, आप बताइए अभी। कई बार ऐसा होता है कि अब जब निष्फल होते हैं, यानी एक्सपेक्ट किया है कि 80-90% आएगा, लेकिन 40% आ जाता है, 60% आ जाता है, कोई भी कारणवश, वो जब हमारी आंखें खोलती है ना, वो जीवन में कभी भी हम भी पीछे हटते नहीं है। ये समझ में आया? जो सफलता ही मिलती है वो आगे बढ़ते जाते हैं, वो गलत नहीं है, हम ये नहीं कहते, लेकिन जो हमारी आंखें खोलती है ना, वो निष्फलता है। निष्फलता हमें बहुत सारा अनुभव देता है, और सफलता बहुत कम अनुभव देती है, क्योंकि सफलता में हम बह जाते हैं, अनुभव को पी जाते हैं। समझ में आया? ये बात है। ये हिंदी में कहावत है, निष्फलता बहुत बड़ी शिक्षा देती है, और वो जो शिक्षा मिलती है ना, वो जीवन में हम कभी भूलते नहीं है, नींद में सपने में भी भूलते नहीं है। ये अच्छा है कि बुरा है? जी बोलो। सिया, मोनिका बोलो। सम्यक।
हाँ अच्छा है। अच्छा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बार एक जगह पे खाना खाया था और पेट बुरी तरह से बिगड़ा था। उसके बाद मैं बहुत बीमार रहा, उसकी असर बहुत हुई थी। लेकिन फिर जब जब खाना होता है तो वो गलती मेरे से होती ही नहीं है कभी। ये समझ में आया? ये तो एक उदाहरण दिया। फिर दूसरा उदाहरण, मैथमेटिक्स में फेल हुआ था। इतना झटका लगा कि फिर मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन ऐसा करता था कि मेरे 12th के एग्जाम में मैं 3 बार पेपर पढ़ चुका था, फिर मैंने दिया था। आधा घंटा पहले फिनिश हो गया था, फिर भी मेरे 2 मार्क्स उन्होंने काटे थे। मुझे आज भी उसका झगड़ा है कि कहाँ काटे, कि मैं पूरा देख चुका था। समझ में आया? निष्फलता आ जाती है, लेकिन जिन लोगों को ऐसी कोई निष्फलता आ गई और आँख खुल गई, उनका काम हो गया। वो कभी जीवन में पीछे हटेंगे नहीं, पीछे पड़ेंगे नहीं, वो कभी हारेंगे भी नहीं। वो इतने प्रोटेक्शन से काम करेंगे कि कहीं कोई स्कोप बाकी नहीं रखते। निष्फलता का कोई अवकाश रखते नहीं है। आप जब पढ़ते हैं तो ऐसा करते हैं, चलो ना ये एक्सरसाइज तो बहुत बार की है, इसकी जरूरत नहीं है अभी करने की। होता है ऐसा? होता है। तो यहाँ समझ लो आपकी गलती हो गई। कभी भी कोई भी चीज मान लेना नहीं है, जो करना है वो करना ही है। समझ में आया सबको? हाँ। इसीलिए ये दादा का ज्ञान हमें भी तरह से क्या बोलते उसको सतर्क करता है, चौकन्ना रखता है। बिल्कुल वो इसे झपकी लेने नहीं देता है। झपकी समझते हैं? देखो केशव दादा इसके लिए क्या बोलते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और केशव दादा ये 5 नियम बनाया है, वो पूरा नहीं करता है तो सक्सेस होता है या फेलियर होता है? कंप्लीट फेलियर। क्या बताया बच्चे लोग केशव दादा ने? नियम टूट गया तो सब खलास हो गया। नियम टूट गया और वो बात हाथ में से निकल गई तो फिर कहाँ सक्सेस का नामो निशान दूर तक चला जाए। सक्सेस होना बहुत जरूरी है। सक्सेस लाइफ में अगर हम कुछ भी करते हैं तो अगर हमको सक्सेस नहीं मिलती है तो हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। फिर चाहे कोई भी फील्ड हो, दादा की फील्ड हो, पढ़ाई की फील्ड हो, अपने घर में मम्मी पापा के साथ का व्यवहार की फील्ड हो, किसी भी प्रकार की फील्ड हो, उधर सक्सेस होना ही है। हम होंगे कामयाब, ऐसा जो आता है ना कि धरती इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम होंगे कामयाब, ऐसा निश्चय होना चाहिए हमको। सबको आपको पता होगा कि जब हमारे पर ब्रिटिश लोग राज करते थे तो हम सब हिंदुस्तान में उस जमाने में हमको गुलाम बोला जाता था कि हम अंग्रेज के गुलाम हैं, और वो हमको इस तरह से देखते थे कि हम गुलाम हैं। तो गांधी जी ने ये अभियान चलाया था और फिर करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे, ये पूरा उन्होंने पूरे देश के अंदर सब नौजवानों ने, बुढ़ा हो, जवान हो, बच्चे हो, उन्होंने ये ऐसा नियम ओथ लिया गांधी जी के सामने कि हम जिएंगे या मरेंगे पर हम आजादी लेके छोड़ेंगे।
तो जब उन्होंने सब पूरे देश के एक एक लोगों ने ऐसा निश्चय किया, हम होंगे कामयाब, करेंगे या मरेंगे, ये दोनों चीजें उन्होंने हाथ में ली, तो आज हम सब आजाद हो गए। अगर वो उधर हम हार गए होते कि हम तो अभी क्या करेंगे, अभी हमारे ऊपर तो वो सब राज करते ब्रिटिश लोग, अभी वो हम तो सब कमजोर है, हम कुछ नहीं कर सकेंगे, पर हमारे पास कोई हथियार भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, खाली एक ही चीज हमारे हाथ में थी कि हमको सक्सेस होना है, हमारे देश को आजाद करने का है, करेंगे या मरेंगे, ऐसा एक हमने नारा पकड़ा था। हमारे बड़े बुजुर्ग ने और देश के सब बड़े लोगों ने, जब हम उस समय तो थे नहीं, पर हमारे पिताजी हमेशा बात करते थे कि हम इस तरह से नारा लगाया था, करेंगे या मरेंगे, और ऐसा निश्चय पक्का किया था, तब जाके हमारे देश को आजादी मिली। पर अगर हम डर गए होते या ढीले पड़ गए होते, या अगर हमने ऐसा सोचा होगा मेरे से तो नहीं होता है, हम क्या कर सकेंगे, हमारे पास तो कुछ हथियार भी नहीं है, तो आज हम इस आजाद देश में घूमते हैं, वैसा हम घूम भी नहीं सकते। तो ये हमारे को हिस्ट्री बताती है कि अपना निश्चय पक्का होने से, हमारा अंदर से जो डिटर्मिनेशन है वो पक्की होने से हमारे पास सक्सेस आने ही वाली है। पर अगर हमारी डिटर्मिनेशन कच्ची है, हमारा निश्चय कच्चा है, अगर हमारा ओथ बरोबर नहीं लिया हुआ है, या हमारा मन हमारे पे हावी हो जाता है, चलेगा बाद में कर लेंगे, ये चीज नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, जब तक ये ऐसी बातें हमारे अंदर रहेगी तब तक हमको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी चीज है। मालूम पड़ा सबको? ये दीदी आपका क्वेश्चन है? नहीं, वो क्वेश्चन नहीं था, लेकिन वो कहना था कि अभी दीपक दादा ने कहा ना निष्फलता, तो वो गुजराती में एक सुविचार था कि निष्फलता એ સફળતાની ચાવી છે। શું કહ્યું? નિષ્ફળતા એ જ સફળતાની ચાવી છે। हाँ, बराबर છે। Yes, बरोबर। yes. Very good, very good. हाँ, तो परफेक्ट। अभी सब बच्चों लोग को मालूम पड़ गया हाँ, कि सब चीज जो होती है वो आपको टीच करती है। खुशी, आप चेयर पे बैठी है, वो भी टीचर है आपकी। ओके साहब, क्यों टीचर है जरा ध्यान रखना। ओके बच्चे लोग, हाँ। तो अभी हम पद सुनेंगे। ओके, आज खुशी दीदी का टर्न है। हाँ। ओके हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे सिमंदर स्वामी भगवान, आप जो चरणों में स्थान, दादा साक्षी पहुंचाड़ो नमस्कार, स्वीकार जो आभार। महाविद्य क्षेत्र विचारता रे हाजरा हाजूर भगवान। महाविद्य क्षेत्र विचारता रे हाजरा हाजूर भगवान। हे सिमंदर स्वामी भगवान, आप जो चरणों में स्थान। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया पद। किधर से निकाल के आए आप? हाँ, किधर से निकाला? हाँ, वो दीदी ने एक पीडीएफ भेजी थी, उसमें से मैंने निकाला। ओके दीदी, उसको मालूम है क्या बात आपने आज में क्या सीन किया आपने? नहीं। सिमंदर स्वामी कौन है मालूम है आपको? हाँ। कौन है सिमंदर स्वामी? किसको मालूम है सिमंदर स्वामी कौन है? किधर है? कौन है? किसी को नहीं मालूम है? जब आरती 24 के तीर्थंकर
No, 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 no. नवनीत दीदी, हाँ वो वर्तमान के तीर्थंकर है जो वेरी वहाँ गुड, या वेरी गुड, वेरी गुड। अभी थोड़ी बातें करो कि अव्यय, तिम्मर स्वामी महाविद्या क्षेत्र में रहते हैं। तो आपको क्यों हम उसको क्यों याद करते हैं, किसको मालूम है? यशोदा दादा थोड़ी बातें करो। हाँ नवनीत जी को मालूम, नवनीत जी बोलो। ताकि अब उठ के गुड क्वालिटीज ले सके और बॉक्स जा सके। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ओके। जिया दीदी, हाँ, क्योंकि उन्होंने क्रोध मान माया पे अपना कंट्रोल किया है, तो हमें भी ऐसा बनने की शक्ति मिले, इसलिए हम उनको याद करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। केशव दादा थोड़ी बातें करो बच्चों के साथ। हाँ, वर्तमान तीर्थंकर बहुत अच्छा। ये जो पद है ना, कि हम क्यों उनको इतनी आराधना करते हैं सिमंदर स्वामी की, क्योंकि वो वर्तमान महाविद्या क्षेत्र में विचर रहे, हाजिर हैं वहां पर। और जो हाजिर होते हैं वो सब काम कर सकते हैं। जैसे हम हाजिर है, आप हाजिर है, पर हम चले जाते हैं तो फिर काम नहीं होता है। 24 तीर्थंकर भगवान जो थे वो चले गए, वो सिद्ध हो गए, वो अभी सिद्ध क्षेत्र में है, वो हमारा इतना काम नहीं कर सकते। उससे थोड़ा हमको पुण्य बन सकता है उनको भजना करने से, पर सिमंदर स्वामी की भजना करने से, उनकी आराधना करने से तो हमको सीधा मोक्ष मिलता है। क्योंकि अभी क्या है, वो महाविद्या क्षेत्र में विचर रहे हैं और हमारे भरत खंड के साथ उनका अनुसंधान है। वो दादाजी ने हमको उनके साथ कनेक्शन करवा के दिया है, और हमको जो दादा ने ज्ञान दिया, समझ दी, तो अभी वो जो हमको समझ मिली, तो अभी हमको 1-2 अवतार में जो दादा का ज्ञान का फॉलो करेंगे, दादा की आज्ञा पालेंगे, तो हम 1-2 अवतार में महाविद्या क्षेत्र में जाएंगे, जहां पर सिमंदर स्वामी भगवान हाजिर है। फिर हम उनका हम दर्शन करेंगे, वहां पर रह भी सकते हैं, वहां पर दर्शन करके फिर 1-2 अवतार में वहां से हम सीधा मोक्ष जा सकते हैं। तो इसके लिए हम उनको आराधना करते कि आप हमको चरणों में जगा दो, आप हमको दर्शन दो, ताकि हम आपके चरणों में आके आपके दर्शन करके सीधा मोक्ष जा सके। क्योंकि हमारा मेन ध्येय तो वही है ना। अभी हम सब काम करके, पढ़ाई करके, सब करके संसार में चले जाने के बाद फिर हमारा क्या होता है कि हमको जो खुशी, जो सुख दादा भगवान ने हमको दिया, वो अभी हमको परमानेंट सुख चाहिए। और परमानेंट सुख कब मिलता है? कि जब हम मोक्ष में जाते हैं। एक सुख तो हमको इधर ही मिल जाता है, जो हमको समझ में आ जाता है जीवन कैसे जीने का, जो दादा ने सिखाया। एक परमानेंट सुख ये, और दूसरा परमानेंट सुख जो हमेशा के लिए मिल जाता है, वो जो उसमें हम सिद्ध जगह पे जाएंगे, सिमंदर स्वामी का दर्शन करके सीधा हम मोक्ष में जा सके। वो महाविद्या क्षेत्र में अभी हाजरा हजूर है। वो अरिहंत क्यों बोलते हैं? कि उन्होंने क्रोध मान माया लोभ रूपी दुश्मनों को जीत लिया है। क्या किया है? जीत लिया है, विन किया है। तो इसके लिए उनको अरिहंत बोलते हैं। अरि यानी दुश्मनों को जिसने जीता है, इसलिए उनको अरिहंत भगवान बोलते हैं, सिमंदर स्वामी को। तो अभी हम उनको क्यों भजना करते हैं? कि हमको भी ऐसी शक्ति मिले, हम भी ऐसे क्रोध मान माया लोभ रूपी दुश्मनों को जीत सके, और जिसका भी हम भक्ति करते हैं तो हम वो स्वरूप बन जाते हैं, तो हमारे अंदर वो सब शक्तियां प्रकट हो जाती है। इसके लिए सिमंदर स्वामी की आराधना करना बहुत अच्छी बात है, वो दादाजी ने हमको सिखाया है। मालूम पड़ा? हाँ आप सिमंदर स्वामी को याद करते हैं कोई? हाँ करते हैं। कैसे करते हैं? नवनीत दीदी, खुशी आपको कौन हेल्प करने वाला है उधर? हाँ नवनीत दीदी। हाँ उठे नमस्कार करके, हाँ ये ब्रदर स्वामी को नमस्कार करके। किसी के किधर किधर करने का बोला है आपको? समझे गए? सर किसको मालूम है किधर होता है? हम जब नमस्कार विधि में 40 टाइम्स उनको याद करते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड।
खुशी, आप नमस्कार विधि नहीं करते? करती हूँ। तो नमस्कार विधि में पहले क्या आता है, किसको मालूम है? नमस्कार विधि में सबसे पहले हम सिमंदर स्वामी को करते हैं। बोलो क्या हो, क्या बोलते हैं श्रेया? पर જય સચિદાનંદ. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષી વર્તમાનમાં આવી ક્ષેત્રમાં આવી ચડતા સ્વામીને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. वेरी गुड. देखो ये सब मालूम पड़ता है कि आप क्या करते हैं एवरीडे. ओके ओके. जय सच्चिदानंद. अभी से एवरी संडे बच्चे आधा घंटा इंग्लिश में बातें करेंगे हम सब. ओके तो कल सब आना. ओके. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद केशव दादा. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद केशव दादा. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. गीता बहन सच्चिदानंद सम्यक अंकल साहब. सम्यक वो 5 नियम आपको बनाने का चार्ट बनाने का है. गीता बहन बोलो. हाँ जी. तो आज तो हिंदी में है. हाँ. दादा रजनीकांत अंकल साहब जय सच्चिदानंद. दीपक आनंद जी साहब जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. केशव आनंद जी साहब जय जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. अब बुक नंबर बी ऑर्डर 1818 पानो नंबर 54 तारीख 16/6/74 मुंबई. नीचे पेज 1818 of 36 नीचे थी चौथो पैराग्राफ. ભદ્રિકતા હોય ને ધંધો ના આવડે ને ખોટ જાય તો વાંધો નથી. સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ. बोलજો તમે. સ્ટાર્ટિંગ બોલ. કેશવાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે ભદ્રિકતા હોય ને ધંધો ના આવડે ને ખોટ જાય તો વાંધો નથી, પણ ભદ્રિકતા ના રહીને બુદ્ધિથી સાચા ખોટા કર્યા તો પછી અનંત કાળ સુધી એનું ભોગવશે. બુદ્ધિ ઓછી હોય તો તે સારું, એ ભદ્રિક હોય. બરોબર સાહેબ આમાં થોડુંક ભદ્રિકતા ઉપર સમજાવો ને. हाँ हाँ बहुत सरस बहुत सरस. કેવા હોય ભદ્રિક માણસો મહાત્મા? हाँ ये શું કહેવા માંગે છે દાદા ભગવાન કે ભદ્રિકતા હોય. भद्रिकता मतलब क्या कि अपने हमारे व्यवहार से हमारे कोई भी स्टेप हम ले तो सामने वाले को दुख ना हो, हम उसका कुछ फायदा करें, उसका नुकसान नहीं करें. कोई भी अगर हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज उनके साथ कनेक्ट की है कि भद्रिकता हो पर उसके अंदर हमको धंधा नहीं मिले, खोट हो जाए, नुकसान पड़ जाए तो उसका वादा नहीं है, पर भद्रिकता नहीं जानी चाहिए. भद्रिकता यानी क्या कि भाई अगर वो बोलता है कि भाई आज मेरे पास आप जो मेरे को ये चीज देते हो वो मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं खरीद सकूं, और वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल निकाल के ऐसे प्राइस में उसको दे देवे, हाँ तो उसमें क्या हो जाएगा कि भाई उसको कमाने को कुछ नहीं मिलेगा, पर उसने क्या किया, सामने वाले को हेल्प किया, उसको अच्छा करके दिया. तो दादाजी क्या कहते हैं, भद्रिकता यानी किसी भी इंसान को आपकी वजह से उसको फायदा होना चाहिए, भले आपको खोट जाए, भले आपका नुकसान हो जाए. भद्रिकता मतलब किसी भी अंदाज के अंदर, किसी भी संजोग के अंदर वो ऐसा माइंड में संतुलन करके वो प्लस माइनस करता है बंदा कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे को नुकसान तो हो जाएगा, पर भले मुझे नुकसान हो. दादाजी क्या करते थे कि
उनको जब भी बॉम्बे जाते थे तो बॉम्बे जाते समय वो आजू बाजू के सब लोग गांव वाले क्या बोलते थे कि तुम बॉम्बे जाते हो दादाजी, तो उधर हलवा बहुत अच्छा मिलता है, तो हलवा उधर से आप लेके आना ना। तो अभी दादाजी तो बहुत ही ऐसे किसी को भी हेल्प करने को तैयार हो जाए, कभी किसी को ना नहीं बोले। तो उधर जाते थे, सबके लिए हलवा लेके आते थे, पर उनको जो प्राइस होता था उसमें कम करके उनको देते थे कि उनको ऐसा माइंड में विचार नहीं आवे कि अरे ये इतना महंगा कैसे लेके आए, इतना महंगा लेके आए हलवा। तो वो क्या करते थे कि अपने को भले खोट जाए पर सामने वाले को फायदा होना चाहिए, सामने वाले को खुशी मिलना चाहिए, ऐसी भद्रिकता। तो ये दादाजी कहना चाहते हैं कि भद्रिकता जब जिसके पास आती है ना तो उसके पास बुद्धि नहीं रहती है। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि वो हमेशा नफा नुकसान करवाती है। तो वो भद्रिक आदमी होएगा तो उसके पास ये बुद्धि आएगी ना, तो उसको बुद्धि को उधर खड़े भी नहीं रहने देगा भद्रिक पर्सन। बाकी तो बुद्धि तो क्या करेगी, ऐसा करेगा तो नुकसान हो जाएगा, ऐसा करेगा तो धंधे में नुकसान हो जाएगा, अब हम कैसा ये धंधा चलाएंगे। भद्रिकता मतलब ऑल द टाइम दूसरे के बारे में सोचने का, अपने बारे में कुछ नहीं सोचने का। क्योंकि बुद्धि तो क्या है, तर्क वितर्क करेगी अपने। और बुद्धि का मतलब क्या होता है, धंधे में कितने लोग बुद्धि वापर के वो क्या करते हैं कि ट्रिकबाजी वापरते हैं। ट्रिक, हाँ, वो दादाजी एक एग्जाम्पल भी देते थे। वो दादा क्या बोलते थे कि आपको समझो 2 रुपए का इसमें प्रॉफिट रखने का है, तो उसमें 2 रुपए का प्रॉफिट रख के ऐसा धंधा करने का। फिर ऐसा नहीं बोलने का मैं बहुत ही अच्छा माल लेके आऊं, नंबर 1 माल ये है ना, मैं 150 से कम आपको मिलेगा नहीं मार्केट में, पर मैं आपको है ना 110 में देता हूँ, मैं 40 रुपए का आपको फायदा करके देता हूँ। अभी वो फायदा तो ऑलरेडी करता होएगा, पर वो क्या करते हैं, ट्रिक वापरा। तो वो भद्रिक जो आदमी होता है उसको बुद्धि तो उधर टच भी नहीं करेगी, वो विचार ही नहीं आएगा कि मैं इस तरह से बात करूं, ऐसे ट्रिकबाजी करूं। दादाजी बोलते धंधे में कितने लोग सब ट्रिकबाजी ही करते रहते हैं, और वो ट्रिक से क्या होता है, सर एंड में तो नुकसान ही होता है। उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं फायदा करता हूं, पर वो कितनी खोट खाता है, अपना कितने कर्म बिगाड़ता है, कितना वो मन में एक, वाणी में दूसरा, बर्तन में तीसरा। उसमें प्रॉफिट उसको दादा बोला 2 रुपया है तो 2 रुपया रखो, फिर तुम इसमें 50 रुपया का क्यों प्रॉफिट रख दो? क्योंकि वो ग्राहक आपके सामने खुश हो गया, वो आपने उसको ट्रिकबाजी से बात किया तो आपके वो कन्विंस हो गया। तो एंड में जहां पर आपको 5 रुपया 2 रुपया प्रॉफिट देने का था, उधर आपने 50 रुपया ले लिया। तो ये आपने क्या किया, ट्रिकबाजी वापरी ना, ट्रिक वापरी ना। आपकी भद्रिकता कहाँ गई? भद्रिकता का मतलब क्या कि जो आपने डिसाइड किया हो, जो मेरे को 2 रुपए का प्रॉफिट होता है उससे मेरा घर बार चलता है, तो ठीक है, सामने वाले को लूटने का नहीं, बरोबर। हाँ। इसलिए भद्रिकता मतलब क्या कि किसी भी संजोग में ऑल द टाइम अपोजिट पर्सन के बारे में सोचने का, उसको हेल्प करने का, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचने का। भले अपने को खोट जाए या नुकसान जाए, पर एंड में क्या देखने का कि सामने वाले को आपके होने की वजह से खुशी मिली कि नहीं मिली। करेक्ट। सामने वाले के बारे में दादा बहुत सोचते थे, भद्रिकता उसको बोले जाते हैं। कितनी बार वो नहीं एक एग्जाम्पल देते थे कि दादा वो कोई बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो गया हो, और तो आजू बाजू के जो लोग होए तो वो दादाजी के सब बात सुने तो उनको ऐसा लगे क्या बहुत बड़ा बिजनेस की बात करते, तो दादाजी क्या बोलते कि इस बार धंधे में थोड़ा नुकसान गया। तो ऐसा बोलने से क्या होता था, उनको रात को नींद अच्छी आ जाती थी। तो दादाजी कितना सोचते थे दूसरों के बारे में, ऑल द टाइम दूसरों के बारे में सोचते, उनको भद्रिकता बोलते हैं। किसी भी वजह से सामने वाले को आपके प्रेजेंस होने से वो उनको दुख नहीं हो। गूगल का मीनिंग देखो, कल्याणकारी, वाह, वंडरफुल। मांगलिक, भाई मंगलमय हो। भाग्यशाली मतलब कितना भाग्यशाली। सभ्य, खानदान, वंडरफुल। सोनू, संगीत में एक अलंकार। ये आगे का खानदान, फिर न सभ्य, भाग्यशाली। हाँ, कितना डेप्थ है उसमें, बहुत डेप्थ। हाँ। तो ऑल द टाइम ऐसा अंदर हमारा अंदर दादाजी के अंदर ऐसा चलता था। तो उनको बोलते थे भद्रिकता तो देखने जैसी थी। दादाजी कभी भी किसी भी जगह पे अपना फायदा नहीं सोचा, सामने वाले को फायदा हो
सामने वाले का कल्याण हो, सामने वाले को कैसे हेल्पफुल हो, वही सब दादाजी सोचते थे। हाँ इनमें जी, से हाँ जी। दादा इसलिए बहुत बड़ा सेंटेंस बोल दिया, भले नुकसान धंधा हो के ना हो, भले नुकसान हो जाए, उसकी चिंता मत करना, पर भद्रिकता नहीं जानी चाहिए। भद्रिकता नहीं जाने देना। बहुत मतलब सरस, कितनी बहुत बड़ी सरस। कमानी है, भद्रिकता हमारे हाथ में रही तो हमने बहुत बड़ी कमानी कर ली। वो धंधे की चिंता नहीं करने का। બરોબર છે, ભદ્રિકતા ठीक તો है બહુ મોટો ગુણ गीताबेन, છે ને, બહુ મોટો ગુણ છે ને બહુ ભદ્રિકતા. મોટો ગુણ છે, બહુ બહુ મોટો। મોટો ગુણ છે. આ કાળમાં તો આવી ભદ્રિકતા હોય જ નહીં। मतलब ऐसे काल के अंदर ऐसा जो दादा बोलते हैं ना, लपसणु काल, ऐसा जो उतरता काल है, ऐसे काल में कहाँ भद्रिकता होती है। ऐसे नहीं दादा बोलते कैसा भी करके मैं दूसरे का लूट लूं, यही भाव चलता है। मेरे घर में सबसे ज्यादा आए वही भाव चलता है, मैं कैसे बड़ा धनवान बन जाऊं वही हो जाए। ऑल द टाइम यही चलता है। ये काल ही ऐसा है, काल का चक्र ही ऐसा है। कभी ऐसा विचार नहीं होता है कि मैं दूसरे को कैसे हेल्पफुल हो जाऊं। हाँ, खरेखर खरेखर बरोबर साहेब, बहुत सरस सरस ठीक है समझ में। गीताबेन, हाँ जी साहेब, जय सच्चिदानंद, जय केशवानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। केवरीबेन, जय सच्चिदानंद रजनी काका। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, वो मुझे ये प्रश्न पूछना था कि जो हम कलम बोलते हैं ना, कि किसी का वर्णवाद नहीं, वो पीछे नहीं बोलने का, वो सब, तो उस वक्त जो निश्चय किया होता है, तो जब बोलने का होता है तो याद आता है कि ये हमें नहीं करना है। और जब कभी नुकसान होता है ना, तब ये होता है कि नहीं चलो ना, इस बार कर देते हैं, बाद में नहीं करते हैं। तो अभी उसका और निश्चय जो करना होता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए ना। और एक दूसरा वो था कि दादाजी ने ये बताया कि अव्यवस्थित भी व्यवस्थित से बाहर नहीं है। तो जब भी कुछ मतलब हमको जो व्यवस्थित नहीं लगता ना, उसको हम अव्यवस्थित बोल देते हैं। और तभी जब मालूम पड़ता है तो बहुत देर हो गई होती है कि जो अव्यवस्थित है वो भी व्यवस्थित है। तो उसको मतलब पक्का करना, या मतलब उसके बारे में आप समझाइए ना। हाँ, एक एक करके ले। तो फर्स्ट वो है अवर्णवाद। तो आपको मतलब कैसे एक बार ऐसा मन में होता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, अविनय नहीं होना चाहिए, वो तो इस तरह से फिर आपका मन ऐसा बोलता है कि इस बार एक बार हो न चलेगा, फिर बांधा चले जाए। हाँ, तो दादा बोलते हैं कि भाई ये अनंत अवतार की तो मार खाते हुए आए हैं, कितने कितने अवतार मार खाते हुए आए हैं, कितने बार हमारा इसी तरह से ही मरण हुआ है। तो वो क्या दादा बोलते कि अभी तो आप जागृत हो जाओ। पहले तो हमारे पास कोई कनेक्शन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। वो तो हम अज्ञान की दशा में, अंधकार में पूरा जीवन निकाल रहे थे। पर दादा तो बोलते कि अभी हमने आपको जगाया है, अभी हमने आपको जागृत किया है, तो अभी आप अपने मन के हवाले कैसे हो जाते हैं। अभी तो हमारी जागृति इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि मन हमारे पे हावी नहीं हो सकता है। अभी तो हम हमारे मन के ऊपर हावी हो जाए। ये मन ऐसा बोलता है कि चलो एक बार, चलो ऐसा कर लिया ना, वादा नहीं है ना, इससे क्या होगा, फिर बाद में नहीं करेंगे, बाद में अभी नहीं इस बार करेंगे। कर ले। तो बोले कि कितने अवतार हमने ऐसा अपना जन्म गंवाया है, कितने अवतार ऐसा निकाला है, इसकी वजह से तो अभी तक हमारे में कोई बरकत नहीं आई है, अभी तक हमारे को हाथ में कुछ क्लियरेंस नहीं आया है। तो कब तक हम मार खाएंगे, कब हम जागृत होएंगे। ज्ञानी पुरुष के मिलने के बाद जो हमको एक बार हम जाग गए, तो फिर हम कैसे सो जाएंगे। इस तरह से अपने साथ बातचीत का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये बातचीत नहीं करेंगे तो ये मन हमारे पे हावी हो जाएगा, फिर हम मन के हिसाब से चलेंगे। और फिर एक बार अगर मन हावी हो गया, तो एक बार हमने बोला ना कि इस बार चलेगा, ऐसा 10 बार हो जाएगा। मन क्या, गुजराती में दादा बहुत अच्छा सेंटेंस हमको बोलते थे कि मन लपटू पड़ी गયું છે। मतलब लपटू पड़ी गયું છે શા માટે बोलते थे हमको। तो आप तो पुत्रों को बहुत जागृत करते थे। एक बार हमको बोला, कितने आप तो पुत्रों को ये बात बताते थे कि भाई क्या हो गया, आज तुम आए नहीं सत्संग में। तो एक बोला इस बार चलो ना, नहीं जाता हूँ, तो मैं तो रोज तो दादाजी का दर्शन करके आता हूँ, तो इस बार मैं नहीं जाता हूँ। तो वैसे तो रेगुलर जाता हूँ, महीने में 300 दिन जाता हूँ, आज नहीं गया तो चलेगा ना। तो उस दिन दादा ने पूछा क्यों नहीं आए तुम सत्संग में।
क्यों नहीं आए? तो बोला दादा उस दिन क्या हो गया कि मैं दादाजी को तो सब पता रहता था कि ये कब आता है, ये कौन आता है, सब जबरदस्त जागृति रहती थी। कौन आदमी कितने दिनों के बाद आया तो भी दादा को पता था, और आप तो पुत्र तो साथ में रहते थे। तो दादाजी को बताया कि दादा कल मेरे मन में ऐसा आया कि आज मैं नहीं जाता हूं, तो थोड़ा थक गया हूं, ऐसा करके बोला, तो मैं दादा इसके लिए नहीं आ सका। तो दादाजी ने क्या बोला कि जिस दिन मन ऐसा बोलता है कि चलेगा आज मैं नहीं जाता हूं, उस दिन तो चौकस ही जाने का, उस दिन तो खास आने का ही। वैसे तुम्हारा मन नहीं बोलता है, और हकीकत में क्या हुआ हो कि भाई तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो गई हो, पर जिस दिन मन ने आपको बोला कि चलेगा, उस दिन तो वो मन की बात नहीं सुनने की, क्योंकि एक बार आपने सुन लिया मन की बात तो लपटू पड़ी जैसे मतलब फिर बार बार आपको मन है ना ऐसा सिचुएशन बताएगा, आपकी बुद्धि इतनी उसमें प्रोटेक्शन में चली जाएगी कि रोज नए नए आपको रास्ते बताएगी कि आज ऐसा हो गया इसलिए नहीं करती हूँ, आज ऐसा हो गया इसके लिए मैंने ये छोड़ दिया, और इतने प्रोटेक्शन करके करके आपको पूरा जागृति में लेके जाए। और फिर इतनी मेहनत जो की है वो सब पूरी मेहनत पानी हो जाएगी। कितनी दादा बोलते थे कि मैं आप लोगों के ऊपर कितनी मेहनत करता हूँ, कितनी सुबह से लेके 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक आप लोगों के साथ में बैठता हूँ, 24 घंटा आप लोगों के साथ सत्संग करता हूँ। फिर बार में फिर 2 दिन के बाद आके बोलते दादा ये तो मेरे से ऐसा हो जाता है, दादा मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन ऐसा हो जाता है। तो बोलता है इतनी ज्ञानी पुरुष अगर एक बार आपको ये रास्ता दिखाए, ज्ञानी पुरुष ने एक बार ये रास्ता दिखाया कि ऐसे ऐसे करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा ऐसा स्टेप लेने से हम केवल ज्ञान तक पहुंच सकते हैं, ऐसी ऐसी जागृति रखने से हम अपने आप से लड़ सकते हैं और अपने मंजिल पे पहुंच सकते हैं। हम कितनी मेहनत करते हैं, कैसे खाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, किस तरह से बात करना चाहिए, कैसे एडजस्ट करना चाहिए, कैसे 5 आज्ञा पालन करना चाहिए। दिन रात दादा ने हम लोगों के ऊपर मेहनत की है। और फिर उसके बाद हम ऐसा कह दे कि भाई आज का दिन तो चलेगा ना, आज तो मैं चला लेती हूँ, आज तो ऐसा नहीं करूँ तो बाद में देखा जाएगा, रोज तो मैं करती हूँ, तो बहुत बढ़िया जागृति। दादा बोलते हैं फिर धीरे 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 वो मन आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपकी इतनी सारी मेहनत जो की है इतने दिनों की वो सब पानी हो जाएगी। तो जिस दिन ऐसा बोले ना आज चलेगा, आज नहीं करते या आज ऐसा करते, उस दिन तो खास बिठा के उसको किसी भी तरह से वो चीज को पकड़ा के वो चीज पूरा करने का। ये बहुत बहुत दादा हमको आज्ञा देते थे, तो मन के हिसाब से मत चलो, मन के हिसाब से जो चलेगा उसका सर्वस्व चला जाएगा, ऐसा दादा ने वाक्य बोला है। हमको तो पता ही नहीं होता था कि उसका सर्वस्व यानी क्या। आपको ज्ञानी पुरुष जो मिले हैं, ज्ञानी पुरुष के सब जो इतनी कितने जन्मों के पुण्य से उनके दर्शन हुए हैं, उनकी बातें सुनने को मिली है, उनका विज्ञान मिला है, तो उसको सर्वस्व बोलते हैं। वो सर्वस्व चला जाएगा, मन का चला जो चला उसका सर्वस्व चला जाएगा। तो मन के हिसाब से तो चलने का ही नहीं, मन तो दिन रात ऐसा दिखाएगा, ऐसा करे तो ऐसा ऐसा, अभी तो सुस्ती हो गई है, अभी तो मैं थक गया हूं, अभी तो मेरे को अभी कल से तो कितने दिनों से मैं करता आ रहा हूं, कल आएगा तो मैं कल इससे अच्छा करूंगा। ऐसा बुद्धि है ना, वो बुद्धि अपने आप को ऐसा प्रोटेक्ट कर डालेगी। और इसको तो बोलते हैं ना कि अंदर बहुत बड़े भूत बैठे हुए हैं, एक भूत अंदर घुस गया तो दूसरे भी 10 भूत घुस जाएंगे और फिर पूरी प्रकृति को खलास कर डालेंगे। इसलिए तो ना वो क्रोध मान माया लोभ लोभ मोह ऐसी रूपी दुश्मनों को जिसने जीता है, ऐसे सिमंदर स्वामी को क्यों भजना करते। ये दुश्मनों को जब तक हम नहीं लड़ेंगे, उनको नहीं जीतेंगे, तब तक हम कैसे अपने आत्मा के स्वपद में आएंगे, कैसे हम केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमको बहुत इजी लगता है ना केवल ज्ञान मिलना, केवल ज्ञान समझना, ये हमको बहुत इजी लगता है क्योंकि हमको सहज रीत से मिल गया है, बहुत इजीली मिल गया है, इसलिए हमको इतनी बात की वैल्यू नहीं होती है। पर बाकी जिन लोगों को पता है कि संकेत क्या होता है, केवल ज्ञान क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, उनको आप पूछो ना, और कितने लोगों को हम बताते कि दादा ने हमको संकेत दिया, तो उनको विश्वास नहीं आता है। जिनको पता है कि संकेत क्या होता है,
बड़ी मुश्किल से चीज मिली है, और हमारे कितने पुण्य है कि हमको दादा भगवान के दर्शन हुए, दादा भगवान का विज्ञान मिला, दादा भगवान की समझ मिली, संकेत मिला, जिसकी वजह से हम इतने ज्ञान में प्रगति कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको 1-2 अवतार में मोक्ष मिलेगा। सिमंदर स्वामी के दर्शन तो कनेक्शन मिलना ही बहुत मुश्किल है, पर वो दर्शन मिलना दादाजी ने इतनी गारंटी दी है, तो 1-2 अवतार में सीधा मोक्ष में चला जाएगा। तो उसके बाद फिर कैसा सोने का, इसको सोना बोलते हैं कि भाई ये तो फिर जाग के फिर सो गए। इसलिए मन के हिसाब से मत चलो। हाँ, ख्याल आ गया? ये मन के हिसाब से चलते हैं, वो सोना बोलते हैं उसको। हाँ, सो जाना का। हाँ, सो जाने का। सो गया, आपने दादा हाँ, भगवान ने हमको जागृत किया, फिर हम कैसे सो सकते? हाँ, एक बार जागृत हो गए तो जागृत हो गए, फिर सोने का नहीं, फिर सवाल ही नहीं। ये तो मन के सब उनको वाजू कर डालने का। हाँ, इसलिए तो बार बार बोलते हैं सिंह के संतान को ये सब क्या कर सकते हैं, ये सब शियाड़ है, ये मन ये वो सब अपने को कैसे हमारे पे हावी हो सकते हैं। हाँ, इनके ऊपर हमको जीत पानी है, क्रोध मान माया लोभ मोह के ऊपर जीत पानी है, जैसे सिमंदर स्वामी ने जीत पानी है। इसलिए तो दादा बोलते थे 40 बार सिमंदर स्वामी को नमस्कार बोलने का, तो उनकी जैसी शक्तियां हमारे में प्रकट आए। सही है। हाँ, दूसरा आप क्या पूछ रहे थे? दूसरा वो जब भी कोई हमारी मतलब हमारे सोच का या कुछ गलत हो ऐसा लगता है ना, तो वो अव्यवस्थित है ऐसा मान लेते हैं। हाँ, और दादा का एक इसके भी ऊपर एक वाक्य है कि अव्यवस्थित व्यवस्थित नहीं बार નથી। वो उसको ऐसे डिटेल में समझाइए ना। हाँ, दादा ने सही बोला, क्योंकि नॉर्मली कितने लोगों को क्या बुद्धि बहुत होती है, बरोबर, और अपने हिसाब से देखते रहते हैं, और कोई भी चीज ऐसा हो जाए कि इधर सब कोई अच्छी तरह से प्रोग्राम चल रहा हो और फिर थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाए, तो फिर सब चिल्लम चिल्ली करना शुरू कर देंगे, ये क्या हो रहा है, ऐसा होता है क्या? तो ये सब बिल्कुल गलत बात है। व्यवहार में ऐसा होना चाहिए, सबको लाइन में आना चाहिए, सब ऐसा करना चाहिए, सब अव्यवस्थित हो गया है सब। जब ऐसा वो सब दिखाई देता है ना, तो तब वो उधर बुद्धि काम करती है। पर साइंस क्या बोलता है कि ये जो अव्यवस्थित भी आपको जो दिखाई देता है वो भी व्यवस्थित ही है। ऐसा विज्ञान है, वो ऐसे कौन से संजोग की वजह से अव्यवस्थित हुआ वो आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, वो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा, पर वो व्यवस्थित शक्ति क्या कर रही है, वो कितना डिटेल में वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया ताकि आपको अव्यवस्थित लगा। पर हकीकत में वो अव्यवस्थित भी व्यवस्थित ही है, वो व्यवस्थित ही है, क्योंकि वो आपको पता नहीं है कि किसकी वजह से ये गड़बड़ हो गई, किसकी वजह से ये अस्त व्यस्त हो गया, किसकी वजह से ये दूल्हा अपने जो उधर बैठने वाला था वो 2 घंटा लेट हो गया। ऐसा कोई व्यवहार होना चाहिए? हमारे पिताजी तो बहुत गुस्से हो जाते थे कि कोई भाई शादी के टाइम पे लोग ऐसे 2-2 घंटे लेट आते हैं, इतना तैयार होने में टाइम लगता है। हमारे 7-8 भाइयों की शादी हुई ना, तो पिताजी बहुत अपसेट, क्योंकि वो नियम वाले थे, बहुत ही नियम वाले, टाइम वाले थे। तो बाकी सब तो थोड़ा ज्ञान में रहते थे, पर पिताजी बहुत एक्साइटेड हो जाते थे क्योंकि घर के बड़े थे। तो जब भी शादी को दूल्हा दुल्हन को बैठना हो तो पूरी प्रजा आके बैठ गई हो, तो ये 10 बजे आ रहे हैं और टाइम लिखा हो एल्बम में उधर 7 बजे का कि 7 बजे सब रिसेप्शन में आ जाएंगे। अभी पिताजी बोले कि जब वो नियम वाले आदमी होंगे तो उनको तो क्या लगेगा, ये अव्यवस्थित हो गया, ये सब गड़बड़ हो गया। पर वो उनको बैकग्राउंड में उनको क्या पता कि कितने सारे संजोग होंगे, कितने सारे व्यवस्थित शक्ति के कारण से साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसे कैसे इकट्ठे हुए होंगे जिसकी वजह से इनको इतना लेट हो जाना पड़ा। तो हमको बाहर से सब अव्यवस्थित दिखाई देगा, पर है एक सेकंड बाय सेकंड व्यवस्थित ही चल रहा है जगत। इसलिए वहां पर अपनी बुद्धि नहीं चलाने की। अव्यवस्थित कुछ भी दिखाई दे तो दादाजी का वाक्य को हाजिर करने का, ये अव्यवस्थित आपको दिखाई दिया है, पर अपने को समझ जाने का, बाहर से सब दिखाने का कि ऐसा नहीं होना चाहिए, चलो हम दूसरा कुछ अरेंजमेंट करते हैं, चलो उनको गाड़ी में बिठा के लेके आते हैं, ये सब एक्शन लेने का। पर माइंड में वो बढ़तरा नहीं होनी चाहिए, ये क्या हो रहा है, वो माइंड में पूरा अपसेट नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि पूरी व्यवस्थित शक्ति आपके हाथ में नहीं है। व्यवस्थित शक्ति सब व्यवस्थित ही रख रही है। आपको ऐसा लगता है कि ये अव्यवस्थित हो गया, क्योंकि वो उसका नियम ही है कि हर एक चीज को व्यवस्थित में रखने का। सूर्य चंद्र तारा हर एक चीज व्यवस्थित ही रखती है,
कितने बजे सूर्य उदय होता है, आपको कल्पना में नहीं कर सके। इसलिए तो दादा भगवान ने बोला कि ये व्यवस्थित शक्ति को ढूंढने के लिए मेरे कितने सारे भव निकल गए। हम तो आज इतना सब बात करते हैं, तो दादाजी तो एक एक वाक्य को कैसे शोधखोज किया होगा व्यवस्थित शक्ति को, आप सोचो तो सही। हमको ये दादाजी ने कितनी बार बताया कि इस व्यवस्थित को ढूंढने के लिए हमने कितने सारे भव निकाल दिए। आप विचार करो कैसे व्यवस्थित शक्ति होगी। हम तो कितने पुण्यशाली है कि दादाजी ने हमको व्यवस्थित शक्ति जैसी समझ दी, जो हमने 1-2 मिनट में ऐसा माइंड में आ जाते हैं। पर जिन्होंने रिसर्च किया, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड में जाके एक एक एविडेंस को देखा होगा, तो उन्होंने कितना रिसर्च किया होगा, कितने सारे भव निकाल दिए। बोलो, एक वाक्य बोला तो हम विचार करते थे कि हम तो एक भाव में कितनी सारी चीजें को एक चीज को ढूंढ नहीं पाते हैं। इन्होंने तो व्यवस्थित शक्ति को ढूंढ निकाला कि व्यवस्थित कैसे काम करती है। तो उन्होंने जब अब ऐसा वाक्य बोला होगा कि अव्यवस्थित भी व्यवस्थित है, तो उसके लिए भी उन्होंने एक भाव निकाल दिया होगा इस शोध को। और एक बार दूसरा एग्जाम्पल दिया कि 7 बार गाड़ी में बिठाने के बाद फिर वापस उसको 7 बार बोले गाड़ी में बैठ जा, तो भी उसको अव्यवस्थित दिखाई नहीं दे, बोले ये व्यवस्थित है। तो मुझे लगता है कि हमने कितनी बार ये सोचा होगा कि दादाजी क्या बोल रहे हैं। इसको भी मेरे को सोचते कि 7 बार गाड़ी में बिठाने का और उतारने के लिए भी दादा ने भव निकाला होगा कि 7 बार बिठाता है, 7 बार गाड़ी में चढ़ाता है, तो भी व्यवस्थित है। आप उसको निर्दोष देख सकते हो, आप उसको कोई दोष नहीं निकाल सकते हो। जब आपने 7 बार वो गाड़ी में वापस बिठाया और आपको वो निर्दोष दिखाई दिया और वो आप चुपचाप फिर गाड़ी में से उतर गए 7 बार, तो समझना कि आपने व्यवस्थित शक्ति की समझ आप में आ गई। दादाजी ने क्या बोला कि 7 बार उतारने के बाद आप सामने वाले को निर्दोष देखो, और 7 बार बैठने के बाद आप बोले कि व्यवस्थित है, और 7वीं बार आपको उतार डाले और आपके मन में एक बार भी उसके लिए खराब विचार ना आवे कि वो पागल है, ये क्या कर रहा है। 7 टाइम्स उतारना, मेरे को तो बोलने में ही डर लगता है कि 7 टाइम्स कोई उतारे तो, और 7 टाइम्स फिर बाद में बिठाए तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाए। आप इमेजिन करो, दूसरी बार उसके गाड़ी में बैठेंगे ही नहीं। विचार तो करो, निर्दोष तो दूर रहा, हम तो उसके साथ ऐसा वेर बांध डाले के साथ आज के बाद तुम्हारे मुंह भी नहीं देखूंगा मैं। तो मुझे क्या लगता था, जो जितनी भी दादा ने व्यवस्थित की बात की है ना, उन्होंने दादा ने एक एक भव निकाला होगा। जो केशवानंद जी जब भी मतलब कई बार व्यवस्थित इतना अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन ये जो मैंने बोला ना अव्यवस्थित वाला, वो सेंटेंस तब याद आता है जब हमें पता चलता है कि पीछे क्या हुआ था जिसकी वजह से वो अव्यवस्थित हुआ था। तब लगता है कि नहीं, वो भी व्यवस्थित ही था, व्यवस्थित हुआ था। परफेक्ट। ऐसा ही ज्ञान हाजिर करना है, ऐसा ही ज्ञान करना है, तो आपको हर घड़ी हर संजोग में आपको समाधि रहेगी। हर घड़ी हर संजोग में। दादा का विज्ञान क्या है कि अव्यवस्थित हो गया तो वो संजोग बहुत भारी हो जाता है, फिर तो मन बर्दाश्त नहीं करता है, सब अस्त व्यस्त दिखाई देता है, मन कूदा कूद करता है। अगर नहीं बोलना हो तो वो भी बोल देता है। ज्ञान इतना जागृत हो जाने के बाद भी वो अव्यवस्थित की जब वो सीमा आ जाती है और संजोग आ जाते हैं, तो मन से क्या शब्द निकल जाता है। क्योंकि मुझे ये बहुत अनुभव क्यों होता है कि हमारा बहुत बड़ा फैमिली था, 35 पीपल का फैमिली था, तो रोज कुछ ना कुछ दादा का विज्ञान का कुछ ना कुछ शोधखोज होता था, कुछ ना कुछ रिसर्च होता था। कोई अचानक ही कोई बम फोड़ डालेगा, कोई अचानक ही कुछ बोल देगा, कोई अचानक बोल देगा कि ये क्या व्यवहार है, आप दादा के पास दिन रात जाते हो, ये ऐसा दादा ने सिखाया है। पर हम उनको कैसे बताएं कि दादाजी क्या बोलना चाहते। हमारी इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं है कि हम अव्यवस्थित का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें या आप लोगों को दुख देवे। क्योंकि दादा के ज्ञान मिलने के बाद तो एक ही निश्चय चलता है कि मेरे मन वचन काय से सबको सुख मिले, सबको खुशी मिले। फिर हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता है कि किसी को दुख देवे। तो भी ये हो जाता है तो दादा ने बोला कि ये व्यवस्थित है। फिर चाहे कितना भी ऊंधा क्यों ना हो जाए, कितना भी गलत क्यों ना हो जाए, आपका इंटेंशन नहीं है ना, रिजल्ट आ गया ना, रिजल्ट आ गया मतलब व्यवस्थित।
बराबर आपके हाथ में कोई सत्ता नहीं है। हाँ, जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मीनाक्षी बहन। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी, जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद दीपकानंद जी, रजनीकांत भाई, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। કેશવાનંદ જી, આપણે દાદા કહે છે કે કંદમૂળ ના ખાવું જોઈએ, हाँ, અને હવે અમારા ઘરમાં તો ફાઇલ 2 ને તો કંદમૂળ એટલે ડુંગળી લસણ તો બહુ જ ખાવું ગમે એમને, એના વગર તો હવે આ કેવી રીતના મારે કેવી રીતના નિકાલ લાવવો, हाँ, કેવી રીતના? હા હા, આપણે દાદા શું કહે છે કે જેમ તેમ કરીને આપણે हिंदी हिंदी संभावे नहीं। दादाजी क्या बोलते हैं कि दादाजी बोलते हैं कि हम पिछले भाव में कुछ ऐसा लेके नहीं आए हो, पिछले भाव में लेके आए हो तो ऑटोमेटिक वो कंदमूल ऐसा हमारे आसपास भी नहीं आएगा। पर लास्ट बर्थ में अगर उधर उसको कंदमूल खाने का साइन किया हो कि उसमें बहुत अच्छा है, कंदमूल खाने से बहुत मजा आता है, खाने में थोड़ा टेस्ट आता है, ऐसा सब डिजाइन लेके आया हो, तो अभी इस भाव में क्या करेंगे? तो दादा ने क्या बोला कि इस भाव में संभावे निकाल करो, क्या आपकी इच्छा नहीं है और आपको अगर बहुत हरकत करता तो आप मत खाओ, आपको तो बिल्कुल नहीं, अगर आपका मन नहीं बोलता है तो भले आप नहीं खाते हो, पर उसके लिए दिन रात प्रार्थना करने का कि हे दादा भगवान उनको ऐसा समझ दो, ऐसी सोच दो कि ये उसको हाथ में एक दिन हाथ में ये समझ आ जाए, ताकि उनको पता चले कि इसके खाने से क्या क्या नुकसान होता है। बरोबर? तो हमको क्या करने का, अभी हमारे हाथ में करने की कोई सत्ता नहीं रही है, अभी हमारे हाथ में एक ही सत्ता रही है कि भाव करो, भाव करो कि हे दादा भगवान इसके अंदर ऐसी समझ दो, ऐसी इनके ऊपर कृपा बरसाओ कि उनको इसका ये विज्ञान खुल जाए कि इससे क्या क्या नुकसान होता है। बाकी अगर वो माल लेके आया है अपना मटेरियल, तो अभी वो उसको वो डिस्चार्ज में कुछ नहीं कर सकता है। तो दादा ने क्या बोला, ऐसा संजोग आता है तो हमारे भी कितने महात्मा तो क्या है कि संजोग आ गया है तो चलो फाइल का थोड़ा सा भी खा के निकाल कर देते, और बहुत स्ट्रिक होते हैं तो ऐसा संजोग आया हो कि कंदमूल वगैरह का खाना नहीं मिलता हो, तो दादा बोलते कि अभी क्या हो गया है, एडजस्ट एवरीवेयर। दादा भगवान के लिए, दादा भगवान जी हमारे घर पे आते थे तो दादा भगवान को कंदमूल तो नहीं खाने का होता था, तो भी अगर संजोग आ जाता था तो बोलते थे बहुत अच्छा खाना बनाया। तो दादाजी क्या किया, हमको तो उसके बगैर चलता नहीं है, तो दादाजी को बोलते थे कि दादाजी अभी वो हमको तो बाद में पता चला कि ये नहीं खिलाना चाहिए, पर फिर दादाजी क्या बोलते थे, एडजस्ट एवरीवेयर। अभी वो उधर आ गए संजोग में तो दादा नहीं हम तो कंदमूल नहीं खाते, हम तो कंदमूल नहीं खाते। दादा बोले ये क्या है, दादा बोले कि हमको ऐसा संजोग आ गया, हम महात्माओं के लिए, ज्ञानियों के लिए ये ऐसा संजोग आ गया, तो थोड़ा खा के एडजस्ट एवरीवेयर करके निकल जाओ। અને બીજું કેશવાને અત્યાર સુધી તો ભાન જ નહોતું, પણ પેલું જમતા પહેલા આપણે પ્રાર્થના કરીએ ને એમાં દાદાને અર્પણ કરીએ આ બધા દેવીઓને, તો આવું કંદમૂળ વાળું બધું અર્પણ કર્યું હોય આપણે અત્યાર સુધી તો ભાન નતું, ખબર નથી, એવી જ રીતના અર્પણ થઈ ગયું છે, તો એ પણ એક માફી માંગીને આગળ વધતા જવાનું, આગળ વધતા જવાનું। દાદા શું કે છે કે કઈ भी वस्तु ऊंधी થઈ ગઈ હોય, તમને હમણાં कोई भी चीज गलत हो गई हो या अभी आपको रियलाइज हुआ कि अभी ऐसा हो गया, तो प्रतिक्रमण करके गाड़ी को आगे दौड़ाओ, उसमें बीच में खड़े मत रहो। ये विज्ञान बहुत अलग टाइप का है। कितने लोग तो क्या है कि इसमें ही पड़े रहे कि मेरे से ऐसा हो गया, मेरे से ये हो गया, फिर उसके बाद उसको डिप्रेशन भी आ जाए। नहीं, दादा बोलते कि दोती मेरी इधर किसी झाड़ में अटक गई तो अपन क्या करेंगे, तो बोले धोती को उतार के भी आगे निकल जाओ। राइट, उधर क्या करेंगे, उधर बैठ जाएंगे, मेरी धोती फट गई, अभी क्या करूं मैं, ऐसा क्या होगा। नहीं, गाड़ी को आगे दौड़ाओ, बहुत प्रगति वाला मार्ग है, अपने को मोक्ष में जाने का है। और दादाजी ने हर एक प्रकार का हमारा रास्ता खुला कर दिया है, जिधर भी भूले हुई हो उधर प्रतिक्रमण करके आगे निकलता जाओ, प्रगति करो, प्रोग्रेस करो, अपने को केवल ज्ञान की तरफ जाने का है। और हमारी खुद की सत्ता कुछ नहीं है, आपकी खुद की सत्ता नहीं है, आपका भाव भी नहीं है, पर जाने अनजाने में जो भी भूले हो जाती है उसका प्रतिक्रमण करके आगे निकल जाना चाहिए। અને બીજું એક કેશવાનંદજી, આપણે આદુ કંદમૂળ કહેવાય ને, આદુ? हाँ, आदु भी कंदमूल કહેવાય ને।
તે તો ભરપટ્ટે ખાઈએ છીએ અમે લોકો તો. पर अभी दवा अभी दादा શું કે છે कि दादाजी क्या बोलते हैं, ये ज्ञान मिलने के बाद अभी ये जो कंदमूल है ये अभी हमको अड़ता नहीं है, हमको टच नहीं करता है। अगर संजोग नहीं है, अगर खुद का माल लेके आए तो खा के संभावे निकाल करो, पर उसके लिए आपको अभी ऐसा तो नहीं होता है ना कि कंदमूल खाने से बहुत मजा आता है। मजा तो चलो नहीं है, लेकिन मजा की बात तो बिल्कुल नहीं है अभी तो। लेकिन वो आलू है ना, वो दवाई के तरह हम खाते हैं। वो ऐसा कोई तो संभावे निकाल बोला ना, संभावे निकाल करो। ओके बराबर, ओके या जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीताबेन अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी, दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलो गीताबेन। हाँ केशवानंद जी, अभी अभी बात हुई ना कंदमूल की, और मेरे से क्या क्या भूल हुई है कि अभी तक मैं क्या करती थी कि अभी करती थी नहीं, करती ही हूँ कि मुझे लहसुन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब कि उसकी स्मेल भी अच्छी नहीं लगती मेरे को। मेरे घर में तो होता ही नहीं है, लेकिन आसपास में भी होता है ना, तो मुझे बहुत चिढ़ आती है। तो मुंह बिगड़ जाता है मेरा। और फाइल टू पहले मेरे ससुराल में तो सब लोग खाते हैं, लेकिन मैं सब लोग उसके घर जाती हूँ, मैं गाँव जाती हूँ, महसाना जाती हूँ, तो मेरे लिए अलग बनाते हैं सब। लेकिन मेरे हस्बैंड भी बहुत खाते थे, लेकिन मैंने प्रार्थना की भगवान को। पहले तो मैं दादा को नहीं जानती थी, इसलिए मैंने भगवान को प्रार्थना की कि वो भी नहीं खाए। तो उसको भी छूट गया, मतलब मन से नहीं छूटा है, उसको अच्छा लगता है, लेकिन उसकी प्रकृति को माफक नहीं आता, इसीलिए उसने छोड़ा है। तो, हाँ, तो ये मेरा गुनाह है? नहीं नहीं नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं। आपने तो भाव किया, पर उसका रिजल्ट में सुपर कंप्यूटर पावर में आपने भाव डाला, पर उसका कौन सी वजह से, कौन सी रीजन की वजह से उनको नहीं माफिक आता है या माफिक आता है, वो आपको नहीं देखने का है। वो तो कुदरत के संचार में आपने सुपर कंप्यूटर पावर में अपना भाव फेंक दिया, बात पूरी हो गई। वो आपने उसके लिए अच्छा होने के लिए बोला, और नहीं, उसके लिए मैंने नहीं बोला, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं तो कोई मेरे बर्तन में कोई लहसुन मुझे डाले ना, तो मैं बर्तन भी मैं वापरती नहीं थी, इतना मुझे उस पर द्वेष था। नहीं, पर वो द्वेष नहीं रखने का। वो दादाजी क्या बोलते हैं, अभी ज्ञान के पहले सब चलता है। ज्ञान के पहले जो आपको होता था वो नॉर्मल है और सबको होता है, पर ज्ञान के बाद क्या है कि द्वेष नहीं होना चाहिए। कोई बाजू में खाता हो तो भी उसको वो असर नहीं होना चाहिए। और संजोग में कैसा होना चाहिए कि वो विज्ञान को समझना चाहिए। दादाजी क्या बोले कि भाई एक वो कोई महात्मा खाना खा रहा था, तो ऊपर से कोई कौवा उधर से कुछ मांस लेके जा रहा था, तो उसकी थाली में गिर गया, तो वो चिल्लाने लगा, ये क्या हो गया, क्या हो गया, पूरा खाना फेंक दिया, बाजू कर दिया सब। मतलब वो घबरा गया कि ये कैसा हो गया, मेरा अनर्थ हो गया, मेरे खाने में ऐसा मांस का टुकड़ा कहाँ से आ गया। तो दादाजी क्या बोले कि ज्ञानी का वर्तन कैसा होता है। बाहर के लोगों का वर्तन दादा ने बताया कि इतने बड़े संत होके भी ऐसे हो जाते हैं, पर ज्ञानी का वर्तन कैसा होता है कि ऊपर से कौवा जाता हो, ज्ञानी पुरुष की पहली थाली में आके नीचे टपका गिरा, तो वो ऐसा चीड़बीड़ नहीं करे, ऐसा बाजू में से निकाल के बाजू में रख देवे। अभी इमेजिन करो कि ज्ञानी पुरुष की देख कैसी है, कौन सी वजह से ऊपर से आके मांस का टुकड़ा आपकी थाली में गिरा, वो आपको पता नहीं है। वो आपका परीक्षा देने के लिए बना है कि भाई कैसे, वो उसके मुंह से गिर गया, वो तो लेके जा रहा था, उसको तो खाना था कौवे को, जो भी लेके जा रहा था, फिर भी वो गिर गया, तो वो उसके हाथ की वो नसीब में नहीं होएगा, पर उस महात्मा की वो परीक्षा होने वाली होगी। वो चिल्लाने लगा, चिड़ आ गई उसको कि मेरी थाली में ये कहाँ से आ गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। दादा बोले ज्ञानी कैसे बिहेव करेगा, संजोगवशात आपके थाली में लहसुन आ गया, बाजू में से निकाल के बाजू में रख दो, खाना खा के एडजस्ट करके निकल जाओ। ये ज्ञान का प्रक्रिया है, ये ज्ञान की समझ है। ये ज्ञानी पुरुष और ज्ञानी लोग ऐसा बिहेव करते हैं। अभी हमको डिसाइड करने का कि हमको कैसा है। हमको दादाजी ने इतना विज्ञान खुला किया है, तो हमको कहाँ से द्वेष, कहाँ से चिढ़,
कुछ भी नहीं, संजोगवशात जो भी हो गया वो आपके हाथ की सत्ता नहीं है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कितने सारे एविडेंस इकट्ठे होते हैं तब जाके ऐसा हकीकत बनता है। वो तो आपकी परीक्षा होती है, आप ज्ञान में कितना आगे प्रगति किया, उसकी वजह से वो लहसुन आया आपके थाली में। हाँ आपका भाव नहीं है खाने का, पर संजोगवशात हो गया, कुछ हो गया, तो चिढ़ नहीं होनी चाहिए। अभी जो चीज आपको चिढ़ लाती है, दूसरों को तो उसमें से बहुत मजा आता है। हाँ वैसा ही होता था। मैंने वो फिर हम उसके लिए कैसा वो व्यू पॉइंट दे सकते हैं कि ये क्या खाता है, ये कैसा खाता है, कैसे हम व्यू पॉइंट दे सकते हैं? वो अपने चार्ज में गए भर में वो क्या चार्ज करके लाया, आपको क्या बात पता है? क्या सिग्नेचर करके आपको क्या पता है? इसलिए दादा ने क्या बोला कि जो भी संजोग आता है, आप बिलीव नहीं करोगे कि जो दादाजी की हाजिरी में कितने सारे लोग आते थे स्टार्टिंग में, जो नॉनवेज खाते थे, तो भी दादाजी ने उनको बोला नहीं कभी। पर वो दादाजी जैसे बोलते थे, दादाजी की प्रेजेंस से, दादाजी के विज्ञान से वो सब चीज ऑटोमेटिक छूट जाती थी लोगों की, आत्माओं की। मिरेकल होता था ये, मिरेकल। तो दादाजी वो जानते थे वो कौन से बैकग्राउंड से आया है, कहां से वो मटेरियल लेके आया है, क्या भाव में चार्ज करके आया है, पर इस भाव में उसकी इच्छा नहीं है, पर डिस्चार्ज में ये निकल रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं? ज्ञानी पुरुष तो खाली वो तो निर्दोष ही देखेंगे, वो बोलेंगे मैं अपना विज्ञान देता हूं, और अलर्ट कर देते थे कि ये चीजों से अपने को अलर्ट रहने का, ये हमारे ज्ञान के लिए हरकत करता है, बस इतना बोल देते थे। विचारशील आदमी, ज्ञानी पुरुष का एक वाक्य सुन के कि ये हरकत करता है, सुन के सब चीज छूट जाती थी। शराब छूट जाती थी, सिगरेट छूट जाता था, बीड़ी छूट जाती थी लोगों की। क्यों? क्योंकि जागृत हो गए। हमारे विज्ञान में, हमारे ज्ञान के लिए ये हरकत करता है। तो जैसे ही हमारी जागृति आती जाएगी, जैसे आपके आसपास के अंदर सब लोगों के अंदर जागृति आती जाएगी, जैसे टाइम होएगा, तब तक दादाजी क्या बोलते हैं, उनके लिए भाव करो, उनके लिए सिर्फ भाव करो और कुछ भी नहीं। जैसे उनका टाइम पूरा होएगा, सब चीज उनके हाथ में से वो भी चीज पूरी हो जाएगी। हाँ, और ज्ञान लिया था उसके पहले मेरे सर्कल वाले क्या करते थे कि लहसुन वाला जो खाना है ना, तो मुझे पहले बोलते नहीं थे कि इसमें है। तो उसको ऐसा लगता था कि देखते हैं कि वो खाती है कि नहीं खाती है। तो मेरे नाक के पास आए पहले भी मुझे स्मेल आ जाती थी, तो मैं वो खाना नहीं खाती थी। तो उसको तड़छोड़ मारा है ना मैंने। हाँ, तड़छोड़ अपने को बोलने का कि आज मुझे अच्छा नहीं लगता है। आज दादा क्या बोलते हैं, ये विज्ञान कैसा है, अगर आपको अंदर से खेच नहीं होती है तो वो आइडिया करने का, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, पर वो नहीं बोलने का कि लहसुन की वजह से मुझे नहीं खाने का। जितनी उसके ऊपर हम दादा बोलते हैं, जितनी हम उसको चीज को दबाएंगे तो स्प्रिंग की तरह उथलेगी, स्प्रिंग की तरह आएगी। इसलिए उसको समझ से निकालने का, हर एक चीज को समझ समझ समझ, कोई भी तड़छोड़ नहीं, कोई भी तिरस्कार नहीं, कोई भी चीज का। तो तिरस्कार ऐसा हो जाए कि जिस दिन डॉक्टर बोले कि ये खाने से बहुत तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो भी तिरस्कार की वजह से वो हमारे हाथ में भी नहीं आए। ऐसी संजोग आ जाए, ऐसा साइंस है, ऐसा साइंस है ये। इसलिए दादा ने कभी, दादाजी ने वो जब एग्जाम्पल दिया ना, तो ही हम शॉक हो गए कि दादाजी क्या बोलते, ऊपर से ऐसा आए, कुछ मांस का टुकड़ा गिरे तो भी उनका पेट का पानी नहीं हिले। ये दादाजी की आंखों के सामने ऐसा एग्जाम्पल हुआ है। तो भाई ज्ञानी कैसे रहते, वो दिखाया, दादा ने बताया ऐसे ज्ञानी रहते, कोई तरछोड़ नहीं, कोई तिरस्कार नहीं। और विज्ञान को, हमारा विज्ञान क्या है कि फुल टाइम समझ 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 ही करना है, करना कुछ नहीं है। दादाजी क्या बोलते, समझ करो, समझो, समझो, समझ से पूरा विज्ञान खुला हो जाएगा। और दादा ने वो हर समझ हमको हाथ में दे दी है। कोई भी चीज से तिरस्कार मत करो, कोई भी चीज से अपने को ऐसा भाव मत करो कि ये भी नहीं खाए तो अच्छा, वो भी नहीं खाए तो अच्छा। जो भी व्यवस्थित होती है, हमारा साइन नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर नहीं होना चाहिए कि ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, अच्छा आता है, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, और दूसरा क्या होता है कि कोई भी भूल हमसे होती है तो तुरंत ख्याल में आ जाता है कि ये गलत किया है। लेकिन तो क्या हम छूटे पड़ गए, लेकिन प्रतिक्रमण बाकी है, ऐसा है। हाँ, अभी पता चल जाता है ना, तो बहुत बड़ी बात है। पहले तो पता भी नहीं चलता था। पता पहले नहीं पता भी नहीं चलता था, अभी पता चलता है तो बहुत बड़ी जागृति है।
और अभी धीरे धीरे जागृति उस लेवल तक बढ़ेगी कि वो संजोग आने के पहले आप जागृत हो जाओगे। दादाजी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि भाई पहले तो फाइल जब घर में आके बैठती थी तब तक याद नहीं रहता था कि फाइल है, तो वो हमारे स्टार्टिंग के स्टेप्स थे। जब आएगी, जब धूम धड़ाका होएगा, बोला चाली होएगी, जब एंड होने को आएगा तब बोलेगा ये आज बहुत भारी फाइल आई थी। तो वो क्या है, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। अभी धीरे धीरे ये ज्ञान की प्रगति कैसे होती है, वो जब से उनके घर पे फोन आता है कि आज मेरी बहन आने वाली है, तब से उसको सब उसके पर्याय दिखाई देते। वो अभी आएगी, ऐसा बम फोड़ेगी, तेरे को ये करने को नहीं आता है, तेरे को वो नहीं करने को आता है, तू ऐसी है, तू वैसी है, वो उसको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है। ये ज्ञान की जागृति की बात करता हूं। तो जैसे ही वहां से निकलेगी ना घर से, तब से आपके प्रतिक्रमण चालू हो जाते हैं। फिर आपके अंदर निश्चय होता है कि आज मेरी बहन आने वाली है, मुझे पता है उसका नेचर है, वो बम फोड़ेगी, मेरा सब ज्ञान सब आगे पीछे कर डालेगी। तो हे दादा भगवान, आज जी आप आज की जो ये फाइल आ रही है ना, उसके साथ मुझे संभावे निकाल करने की शक्ति देना दादा। मतलब हमारी कितनी जागृति बढ़ गई कि उसके नॉक होने से ही भी आपको दिखाई देगा कि ये मेरी फाइल आई है, अभी मुझे इसके साथ संभावे निकाल करने का। फिर उसकी वो टेप रिकॉर्डर चालू होगी, तभी भी आपको दिखाई देगा कि मेरी फाइल बोल रही है, ये मेरे को पूरा जागृत करने को आई है, मेरा ज्ञान को आगे बढ़ाने को आई है। हे दादा भगवान, वेलकम करो इस बहन को जो मेरा ज्ञान आगे बढ़ाती है। नहीं तो हमारी परीक्षा कौन लेगा? ये हमारे फाइल ही तो हमारी परीक्षा लेते हैं। ये फाइल नहीं हो तो हम कैसे पास होंगे केवल ज्ञान में? इसलिए दादा बोलते थे ना कि घर में से ही तो पूरा जीतने की जगह शुरू होती है हमारे ज्ञान की। घर वाले हमारे सबसे बड़े थर्मोमीटर है, क्या बोलते थे? थर्मोमीटर है, सबसे बड़े थर्मोमीटर है। वो हमारा थर्मोमीटर का हमको पता देते कि हमको कितना टेम्परेचर आया है, अभी कितनी हमारे को बढ़ोतरी हो रही है, अभी कितना हमारे को अंदर से गुस्सा आ रहा है, कभी हमको अभी कितना उनके साथ अंदर अथरामण होने के अंदर भाव आ रहे हैं, अभी मुझे कितना विचार आ रहा है कि मैं 2 बम फोड़ दूं इसके ऊपर। वो सब जागृति आती है। बोलो तो ये हमारे फाइल है ना, हमारे सबसे बड़े हमारे थर्मोमीटर है जो हमको जागृत करते हैं दिन रात। तो उनका उपकार मानने का, जो भी फाइल आती हो तभी तो हमको पता चलता है कि हमने आज इज्जत संभावे निकाल किया कि नहीं किया। तभी तो हमारे 5 आज्ञा में हम 70% पास होंगे। 5 आज्ञा में 70% पास नहीं होंगे तो हमको मोक्ष कब मिलेगा? तभी तो दादा बोलते हैं ना, 1-2 अवतार में मैं मोक्ष में लेके जाऊंगा जो आप मेरी आज्ञा में रहो तो। बराबर है, बरोबर है। बराबर है। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। होल्ड ऑन, जय सच्चिदानंद। बोलो, सुनाई देता है? जय सच्चिदानंद। खास करके ये जो हम 4 हफ्ते से नौवीं कलम, ये दादा भगवान मुझे जगत कल्याण करने का निमित्त बनने की परम शक्ति दे कि ऊपर जो अलगपन के सामायिक के साथ ये 9वीं कलम संबंधी जो हम प्रतिक्रमण का पुरुषार्थ रखा है सारे दिन के लिए, 24/7 के लिए रखा है। तो इसके संबंध में दादा भगवान बार बार कहते हैं कि हमने जगत को निर्दोष देखा है और उसके लिए हमारी तपस्या 30 जन्म की थी और हमने व्यवस्थित ढूंढ निकाला। इसीलिए हमें कोई जीव किंचित मात्र दोषित नहीं दिखाई देते, जिसके कारण हम हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। क्योंकि दोषित देखने से ही हमारा आंखें, हमारा चेहरा, हमारा भाव, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार सब बिगड़ जाता है। तो इसके संबंध में आप प्रकाश डाले। दादा भगवान की आपने बहुत अच्छी सेवा की है और आपने दादा भगवान को बड़े अच्छे करीब से देखा है, तो हमें उसका लाभ दीजिए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बहुत बड़ी बात है जो हमने तो बचपन से दादाजी को देखा और
करीब आए तो हर दिन किसी न किसी बात पे हमको एक ऐसा सुझाव मिलता था कि दादा किस तरह से ये रह सकते हैं, हम क्यों नहीं रह सकते। हमको ऑल द टाइम ऐसा होता था कि भाई जिस तरह से दादा पूरे जगत को निर्दोष देख सकते हैं, तो हम घर जाते ही सबके दोष देखना शुरू कर देते, हर एक मेंबर का दोष देखना शुरू कर देते। कितना हैंडल मारना पड़ता था, इतना हैंडल मारते मारते हमारा दम निकल जाता था। तभी भी दादाजी बोलते थे कि भाई ये तो होगा ही, हमारे जिनके साथ आप, जो आपके 8 भाई है, इतने घर के परिवार के लोग हैं, उनकी लेडीज है, उनके बच्चे हैं, उन सब के साथ आप इतना हिसाब लेके आए हो, इतना हिसाब। किसी के साथ 5 जनों का हिसाब, किसी के घर में 10 का हिसाब, किसी के घर में 50 जनों का हिसाब। वो हिसाब तो सब लेके आए हैं, वो हिसाब तो कभी छूटने वाला नहीं है। जब तक देह है तब तक एंड तक रहेगा। पर ये विज्ञान क्या करता है कि वो हमने दादाजी के हाजिरी में देखा। तो दादाजी के साथ हीराबा को हमने देखा कि किस तरह से दादा, किस तरह से उनको पूरा व्यवहार करते थे, किस तरह से संभावे निकाल करते थे। उनको एक तकलीफ नहीं हो, उनको किसी भी बात पे उनका दादाजी का दोष नहीं निकले, वो ऐसा दादाजी की व्यवहार था। तो ये सबसे बड़ा, हर एक घर में बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ हो या बच्चे हो, वो एक दूसरे को कभी सीधी तरह से देख ही नहीं सकते और माफ भी नहीं कर सकते ना। हाँ माफ भी, वो तो फिर अंदर बैठ के अंदर प्लानिंग करते हैं कि कल सुबह को मैं देख उसको कैसा सीधा करता हूँ, कल उसको देखे। उसकी वो वाली बात मुझे अभी याद आई, पर वो सुबह को मैं उठ के वो बात उसको बताऊंगा कि तुम टेबल पे क्या करते हो रोज। ऐसा प्लानिंग करते हैं, पूरी रात उसकी गड़ामन चालू रहती है और गड़तर अंदर चलता रहता है, मैं नेक्स्ट ऐसा स्टेप लूंगा, मैं नेक्स्ट स्टेप लूंगा। वो दादाजी की हाजिरी में हमने बहुत देखा। पर रोज आके दादाजी के पास हाथ जोड़ते थे, दादाजी मेरी इच्छा नहीं है, फिर भी दादा रोज ऐसा हो जाता है। तो दादाजी एक बात पे बहुत खुश होते थे, वो बोलते थे तुमको पता चला ना कि ये तुम्हारे से होता है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर पता नहीं चले और उस आर्ग्यूमेंट में आप आ जाओ और दिन रात उसी बात में तुम्हारा चित्त उसमें पड़ा रहे कि मैं कैसे उसको ठीक करूं, तब तक समझो कि बहुत अंधकार में है, बहुत बड़ी अंधकार में है। मतलब सुबह होने का तो चांस ही नहीं। क्योंकि दादाजी ने जब बताया पूरा जगत निर्दोष है, कितनी बड़ी बात की, पूरे जगत को निर्दोष देखा और खुद निर्दोष होकर पूरे जगत को निर्दोष देखा, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो वो चीज को दादाजी के हाजिरी में हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे कितने सारे महात्मा इतनी भूल वाले थे कि मैं बता नहीं सकता हूं। और उनको दादा किस तरह से, किस सीधी तरह से बात से, कितने प्यार से, कितने उसको अंदर अपने वश में करके वो बात बोलते थे कि वो बात उनकी निकल जाती थी। ये सीखने जैसा है। उनकी पूरी प्रकृति जानते थे कि इसकी प्रकृति कितनी खराब है, तो भी दादा उनके साथ ऐसा टैकल करते थे ताकि उसकी प्रकृति धीरे धीरे उसको खुद को पकड़ में आती थी और घर जाके उसका पूरा व्यवहार बदल जाता था। ऐसा वो सीखने जैसा है। कैसा कि हम घर में बैठे हुए हर एक मेंबर का जब कंप्लीटली निर्दोष देखेंगे ना, तभी ये कला हमारे हाथ में आएगी। छोटी छोटी बात पे उनको बोल देने का, हर एक बात पे हमारे को क्या है, पेशेंस ही नहीं होता है हमारे पास। इतनी उतावल होती है कि मैं कैसे जल्दी उसको बोल दूं ताकि मेरा मन ठंडक हो जावे। और वो मौका ढूंढते हैं। हाँ, उनको ठंडक मिलती है। जब तक वो बोले नहीं ना, तो रात को नींद में से उठा के भी बोलेंगे मुझे अभी बात याद आई ना, आपने उस दिन ऐसा किया था। क्योंकि उसको ठंडक नहीं मिलती है जब तक वो बोले नहीं। पर हमने दादाजी को कभी नहीं देखा ऑन द स्पॉट समाधान, ऑन द स्पॉट हर एक चीज को ऑन द स्पॉट वो सही जगह पे रख देते थे। ये हमको सीखने का है कि हमारे घर व्यवहार में जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम कैसे निर्दोष है वो देखो। वो अपनी प्रकृति अपने साथ लेके आए हैं। अभी हम कितनी बार अपने दूसरों की प्रकृति की तरफ फोकस लगाते हैं। ये खाना कैसे खाता है, टेबल पे सब गिरा देता है, फिर मुझे टेबल साफ करनी पड़ती है, नैपकिन हमेशा ऊंधा रखेगा, नैपकिन इसी जगह पे ये रखेगा, बोल बोल के थक गई हूं तो भी सुनता नहीं है, बोल बोल के उनका पूरा जीवन इसमें निकल जाता है, नैपकिन को सुधारने में पूरा जीवन निकल जाता है। और फिर दादा होते तो क्या करते, वो रोज नैपकिन उठा के वो सोफा पे रख के आते। वो दादा क्या करते थे, वो रोज वहां से सोफा से उठा के वो उधर हैंगर पे डाल के आते।
1 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, 11वीं टाइम उसको पता चलेगा। पर हम जितना बोलते हैं वो उतना ही ऊंधा करता है। उसको करने दो। ये जब तक इसका टेप रिकॉर्डर बंद नहीं होगा ना, मैं नैपकिन उधर ही रख के आऊंगा। ये ऐसा मैंने देखा है और मैंने सुना भी है, मेरे घर में ही सुना है मैंने। मैं जानबूझ के मैं हैंगर नैपकिन उधर, मैं जानना चाहता हूं कि तेरी ये वाणी कब बंद होती है। क्या बोलते हैं, तेरा ये टेप रिकॉर्डर कब बंद होता है। तो दादाजी होते तो ऐसा बोलते, बिना बोले बिना कहे वहां से नैपकिन उठाया और सीधा उसके सामने ही जाके हैंग करके आने का। 10 बार ऐसा करने का, 11 वक्त वो कान पकड़ेगा। अगर ये नहीं करते तो पूरा जीवन उसको बोलना पड़ेगा, हैंगर सही जगह पे रखो, नैपकिन सही जगह पे रखो, ये क्या कर रहे हो। और टेप रिकॉर्डर ही बंद नहीं होती है। सही है। एक बार मैं हकीकत बताऊं, हमने तो एक ही बार में हम सीखे। हमको तो इतना कुछ स्टाइल था नहीं, कुछ समझ थी नहीं। तो दादाजी बैठते थे, तो दादाजी का सिस्टम बहुत क्लीन था, बहुत सिस्टमेटिक। अगर उनके गोल 2 तकिए हुआ करते थे, साइड में रखते थे, तो उनके साइड में तकिए में वो हमेशा एक अच्छा सा नैपकिन रखते थे। तो वो दादाजी को कभी बलगम होता था, कभी ऐसी छींक आ जाए, तो हमेशा नैपकिन उनके दोनों साइड में रखते थे। तो हम क्या करते थे, जैसे ही दादा ने नैपकिन उठाया तो हम फिर उसको नैपकिन को उठा के सीधा इधर साइड में रख देते थे, बरोबर। तो दादा भी ऑब्जर्व करते थे। तो एक बार आपता पुत्र ने क्या देखा कि दादा ने ऐसा नैपकिन रखा, तो उसने भी ऐसा साइड में रख दिया जैसे वो दादाजी ने रखा। तो दादाजी तो हमेशा परीक्षा करते थे सबकी कि कितनी उसको व्यवहार के समझ आई है। तो ऐसा गोल गोल करके दादा उसने भी ऐसा रख दिया। तो दादाजी ने थोड़ी देर ऐसा देखा, पर उसको पता नहीं चला। फिर क्या किया, बात करते करते उसको बिना बोले वो नैपकिन उठाया और उसको फोल्ड किया और अच्छी तरह से गोल तकिए पे रख दिया। तो हमने सबने ऑब्जर्व किया। मैं बोला, दादा बोल सकते थे कि आऊ मुकवानु है नैपकिन, तमने समझण नहीं पड़ती। एक शब्द नहीं बोला और खुद के हाथ से नैपकिन को हाथ में उठाया और अच्छी तरह से फोल्ड किया करके ऐसा रख दिया, और उनकी तरफ देखा तक भी नहीं कि तूने क्या किया। इसको बोलते आवड़ा। फिर उसके बाद तो उसको समझ में आ गया कि दादा को नैपकिन ऐसा ही रखना पड़ता है। ये मैंने क्या किया, एक ही बार एक्शन में बिना बोले नैपकिन को सीधा करके रख दिया उन्होंने। ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि दादाजी कैसे टैकल करते थे। यही टैकल करने जैसी है हमारे को घर में। तो हमारी वाणी बंद हो जाएगी, बोलना बंद हो जाएगा, और सबके अंदर जो हम परिवर्तन चाहते हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, बोलने से नहीं आता है। तो कविराज का एक पद है ना, झुकने की जरूर नहीं, सूरज की जरूर है, बोलने की जरूर नहीं, बतलाने मंजूर है। परफेक्ट बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत दादाजी को ऑब्जर्व किया हमने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया। तो अभी केशव आनंद जी त्रिमंत्र बोला है, दीपक आनंद जी आप जो कोई है वो फॉलो कर सकते हैं आपके आसपास। हाँ, यस फुल। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कल रविवार है और 24 घंटे की कीर्तन बिक्री का समापन सूरत मंदिर पर होगा 11 बजे। तब तक अगर हमें वो मौका मिलता है तो वो हमें भेजेंगे यूट्यूब पर मैसेज। कल की सुबह 6:30 बजे प्रातः विधि, 10:30 सवा 10 बजे गुजराती सत्संग, दोपहर को 3 बजे हिंदी सत्संग, 7:45 को जूनियर फोरम, रात को 9 बजे खास इसकी नोंद ले, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका ध्यान रखें। कल 9 बजे इंग्लिश में सत्संग होगा। हर रविवार 9 बजे का सत्संग इंग्लिश में होगा। उसमें 9 बजे क्या बोलते हैं 4:30 का कीर्तन भक्ति होगा। जरूर से सॉरी आई मिस्ड इट। 4:30 कीर्तन भक्ति और आरती, और 7:45 जूनियर फोरम, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग इंग्लिश में बच्चों के लिए पहला हाफ एन आवर, आधा घंटा इंग्लिश में होगा। तो इसका जरूर से लाभ लीजिएगा। कल आखिरी दिन है 3 जुलाई, 9वीं कलम का प्रतिक्रमण के लिए अलग के